So, welcome back to my channel. Today I'm gonna draw Donald Duck as a samurai. I just needed another excuse to draw samurai on this channel because I love love that armor of samurais and that sword katana. I have drawn this character and I have seen this character from my childhood. Like last when I have drawn Mickey Mouse in my last video, and today I'm gonna draw Donald Duck. I love their style. I love that shape language. I still watch some of the old Disney animations, and I love the craftsmanship and the thought they have put behind making those animations. But while making this video of Donald Duck, I have realized something very deep, that I quite didn't connected with this character, and I didn't feel that much passionate about making this drawing. To be very honest with you guys, while making this drawing I was thinking why I'm even making this drawing, just for the sake of views. I would like to be very honest. And yes, on YouTube the consistency of your uploads matters a lot, and quality of your content and how much content you put, that things matter. And no matter how much someone says that they are passionate of making videos, in the end everyone is making to have something. And as an artist I am also doing it to support my art and support my art through financial means, and to have a larger audience. और Instagram पे मैं ज़्यादा सिर्फ मैं ड्राइंग पोस्ट कर सकता हूँ, बट आई कांट बी दैट इंटरैक्टिव विथ माई ऑडियंस. So I consider this video and this drawing as a miss, but I have realized something in that. Even though YouTube पे views matter करते हैं, and even though some of the comments matter, yes, like of course you have to be financial sound, and आपको financially सपोर्ट करना, फिनेंशियली सस्टेनेबल होना चाहिए आपका ड्राइंग जो एक्टिविटी है. क्योंकि जो भी चीज़ अगर फिनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है उसका लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होना बहुत डिफ़िकल्ट है. मोस्ट ऑफ दी चीज़ें फिनेंशियल रीज़न के वजह से क्लोज डाउन हो जाती है और रुक जाती है. एंड व्हेन यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली तो फिनेंशियल एस्पेक्ट कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बट इवन दो ड्राइंग है, इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन. अगर मुझे ड्राइंग को किसी एक्टिविटी के साथ, फिज़िकल एक्टिविटी के साथ कंपेयर करना रहेगा तो आई विल कंपेयर इट विथ ब्रीथिंग. इवन दो उसमें ब्रीथिंग में कोई कंपटीशन नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक आई कैन ब्रीथ फास्ट, आई कैन ब्रीथ स्लो. इट इज़ जस्ट एक्ट ऑफ सिटिंग और स्टैंडिंग एंड ब्रीथिंग, जस्ट बीइंग यू. बहुत प्योर एंड बहुत लाइवली एक्टिविटी है ब्रीथिंग. लाइक if you don't breathe you will die, and that is essential for your survival as well, and that is the most important task that you want to carry out as a person and as a biological being. So breathing में क्या है, no matter how successful or unsuccessful you are, depending upon the norms of the society or norms of your family or norms of the ritual, everyone is breathing, right? No matter what is the situation, and you want to breathe as long as you want, not as long as you want, as long as you can. You want to breathe as long as you can. So same drawing में है. ये ड्राइंग में कोई भी कितना भी प्रोज हो या स्टूडेंट्स हो या बिगिनर्स हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट यू शो अप टू पेपर एवरी डे. इसमें यू डोंट ट्राई कि आप हर एक पेंटिंग के साथ आपका रीच कितना होता है. इवन दो यूट्यूब में ये सब चीज़ें मैटर करता है एंड यू गेट इनटू दैट मेंटालिटी, बट आप जब भी, अगर आप भी एक मेरे जैसे आर्टिस्ट हो, अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हो मेरे जैसे, तो एंड यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर रहे हो, तो यूट्यूब वीडियो बनाते वक्त मत सोचो कि ये वीडियोस पे व्यूज़ कितना आएंगे. शायद से उससे पहले कंसिडर करो या उसके बाद में. बट नो मैटर व्हाट द आउटकम इज़, कि आप वो आउटकम से आपका वीडियो बनाने का तरीका या फिर उससे आपका वीडियो बनाने के डिसीजंस अफेक्ट नहीं होने चाहिए. कि आप वीडियो में क्या ड्रॉ करने वाले हो वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करना चाहिए.
बिकॉज दैट्स अ सेक्रीफाइस टू बीइंग एन आर्टिस्ट। इसमें अब मैटर करता है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। मेरा प्रायोरिटी है दैट आई एम एन आर्टिस्ट फर्स्ट एंड आई एम जस्ट अ गाय विथ अ स्केच बुक पुटिंग माई कंटेंट ऑन यूट्यूब। तो इसमें आपको प्रायोरिटी मैटर इसलिए करता है क्योंकि इफ़ ऑल यू वांट इज़ टू बी एन यूट्यूबर, देयर आर पीपल हु वांट टू बी एन सो कॉल्ड यूट्यूबर। उनको फैन फेस्ट में जाना है, कैसे क्या है लोग, क्या बोलता है पब्लिक, ये सब चीज़ें करनी है। तो डेफिनेटली उनके लिए दैट्स अ वे ऑफ लाइफ कि जो कंटेंट ज़्यादा पॉपुलर है, जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है, वही कंटेंट बाहर डालो। एंड एज एन आर्टिस्ट यू ऑल्सो वॉन्ट दैट योर video should be useful to your audience, right? But that doesn't mean कि like ये वीडियो मेरे लिए मिस है totally. So I learned that कि whom I am entertaining, like अगर मैं ड्राइंग प्रोसेस अगर मैं enjoy नहीं कर रहा अगर ये वीडियो में and I am not enthusiastic about that drawing, then why I am even making this video? So अगर वो टाइम आपका प्रायोरिटी क्लियर रहेगा, so it doesn't affect you कि आपके बाद में जो कंटेंट डाल रहा है यूट्यूब पे उसको कितना व्यूज़ आ रहा है, कि या फिर आपसे भी जो गया गुजरा कंटेंट डाल रहा है उसके ऊपर कितना व्यूज़ आ रहा है, जिसमें जस्ट ड्रामा है एंड और कुछ नहीं है। गया गुजरा मीन्स ऐसा नहीं जो बिगिनर आर्टिस्ट आ रहा है, पर गया गुजरा मीन्स एवरीथिंग दैट कंसिस्ट ऑफ ड्रामा। आई कंसिडर दैट इज़ एज ए यूजलेस कंटेंट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि उसमें इवन दो इट्स एंटरटेनिंग, इट्स नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनी ऑफ योर ग्रोथ। इवन उसमें कोई ग्रोथ भी जाने दो, अगर उसमें अगर कोई डिस्कशंस भी है या फिर आर्ग्यूमेंट्स भी है तो उसमें कोई कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिससे आपका पर्सपेक्टिव चैलेंज हो रहा है टूवर्ड्स आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हो। तो वो उसमें सिर्फ ड्रामा है, लाइक जस्ट लाइक वॉचिंग अ बिग बॉस, यू डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। एंड अगर वो वीडियो पे आपको व्यूज़ दिख रहे हैं वैसे ड्रामा वाले वीडियो पे, सो इट हैपन्स दैट यू गेट डिस्करेज। बट ऐसे टाइम पे ये चीज़ बहुत हेल्प करता है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। योर प्रायोरिटी इज़ अ मिलियन सब्सक्राइबर, या दैट कैन बी अ प्रोफेशनल गोल, बट दैट कैंट बी योर प्रायोरिटी इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपको ये चीज़ करना है लाइक ब्रीथिंग, आपको जितना लॉन्ग टर्म करना है उतना लॉन्ग टर्म के लिए आप ब्रीथ कर रहे हो, अच्छा है जितना लॉन्ग ब्रीथ कर रहे हो आप। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपके लिए ये चीज़ उतना हेल्दी नहीं है। सो आई विल एडवाइज जो भी यूट्यूब पे ड्रॉ कर रहे हैं टू गेट योर प्रायोरिटी राइट। अगर आपका है कि हाँ मुझे इस पे मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए और ये मेरा प्रायोरिटी है, सो यू कैन एम फॉर दैट। तो आपका कंटेंट आप वैसा मॉडिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्टैट्स, पर आपका प्रायोरिटी है कि मेरे को मुझे अच्छा आर्टिस्ट बनना है एंड मुझे कंटेंट भी डालना है यूट्यूब पे। सो कंसिडर स्टैट्स, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ योर चैनल, बट डोंट चेंज योर डिसीजंस दैट आप क्या ड्रॉ करने वाले हो उस दिन या उस वक्त या वो मोमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।